محترم حضرات، آج ہمارے اور آپ کے درمیان مرحوم رحمت علی صاحب نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے پروگرام میں ہم میں سے کوئی اور بھی غائب ہو، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے، ہر کسی کو یکے بعد دیگرے جانا ہے۔ جس کے سانسوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ عز و جل نے ہمیں فضول نہیں بلکہ کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم ایسے ہی پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ کمائیں کھائیں مر جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک عظیم مقصد کے تحت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے لیے اللہ کا پیغام آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس دارالعمل میں رہ کر کے اپنی دنیا کی بھی تیاری کریں اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ اپنے قبر و حشر کی تیاری کرنا یہ مرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے نصیحت کرو، گناہ بہت ہوتے ہیں، گناہ مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں، بس ایک واقعہ آپ سنیں اور اس کو اپنے دل میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے تھوڑی گفتگو اور عمل پیرا ہونے والی تھوڑی سی گفتگو بہت کچھ کر سکتی ہے، ورنہ گھنٹوں کے بیانات ہوتے رہیں اور عمل نہیں کرنا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضور مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، مجھے ایسی نصیحت فرمائیں کہ آپ کی زبان کی تاثیر میرے دل پر اثر کرے اور میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، میں اپنی قبر و آخرت کی تیاریاں کر لوں۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا نصیحت تو آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی اس واقعے کو آپ نے ذہن نشی کر لیا تو انشاءاللہ عمل پیرا کرنے میں ہمیں بہت فائدہ ملے گا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، اچھا گناہ کرنا، لیکن جس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہو، کیونکہ جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں، جس کی چوکیداری کرتے ہیں، جس کے دیے ہوئے پر ہم پلتے ہیں، ایسا کرنا کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو ایسا کرنا کہ جس کی روزی کھاتے ہو اس کی روزی چھوڑ دینا اور پھر کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، رزق کا رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، میں بھلا اس رازق کی دی ہوئی روزی کو چھوڑ کر بھلا اور کس کی روزی کھا سکتا ہوں؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا یہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ ایسا کرنا کہ آپ رازق کی روزی نہیں چھوڑ سکتے تو ایسا کرنا کہ موت کا جب فرشتہ آئے، موت کا جب قاصد آئے روح نکالنے کے لیے تو کہنا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، توبہ کا دروازہ کھلا، میں سب توبہ تو کر لوں گا۔ کہنے لگا کہ حضور یہ بھی کیسی نصیحت ہے؟ وہ احادیث مبارکہ میں علماء کی زبانی میں نے سنا ہے، جب ملک الموت علیہ السلام سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، جب تم کسی خوش نصیب خوش عقیدہ انسان کا، جب اللہ والے کسی نیک انسان کا کہ جب روح نکالنے کے لیے پہنچتے ہو تو وہ مجھے صورت دکھاؤ۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ حضور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیں،
मेरी बात समझ में आ रही है? पंजाबी बोला टूटी फूटी है, पंजाबी आती तो थोड़ी, कि आप अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लें। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया और फिर जब पलट कर देखा तो इतना हसीन और जमील चेहरा। आप फरमाते हैं, ए मलिकुल मौत, तुम्हारा ये चेहरा देखना ही जन्नत के उन अशाइश से बेहतर है। यानी तुम्हारा अगर इस खूबसूरती को देख लेना, इंसान इस खूबसूरती में गुम हो जाएगा, उसको दुनिया की तकलीफें सब भूल जाएंगी। फिर आपने फरमाया, ए मलिकुल मौत, मुझे वो चेहरा दिखाएं जिसमें गुनहगारों की रूह को कब्ज करते हो। अर्ज किया कि हुजूर, आप वो चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। आपने फरमाया कि मैं इबरत के लिए देखना चाहता हूं। तो मलिकुल मौत ने अर्ज किया कि हुजूर, अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लें। आपने फेरा और फिर फरमाया, अर्ज किया कि हुजूर, अब मेरी तरफ देखें। रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई, बेहोशी तारी हो गई। आप जब होश में आए और फरमाया, ए मलिकुल मौत, एक दुनियादार गुनहगार इंसान के लिए तुम्हारी शक्ल देखना यह अजाब से कम नहीं है। वो नौजवान कहता है कि हुजूर, हमने तो उलमा से ये सुना है कि मलिकुल मौत की वो डरावनी सूरत जब गुनहगारों के पास आकर के रूह निकालता है, उस वक्त उसके मुहीब सर से लेकर पैरों तक लटकते हुए डरोने बाल और उनके मुंह और नाक से निकलता हुआ धुआं और आग और उनकी बिजली की चमक से भी ज्यादा खतरनाक चमकने वाली आंखें और उनके लंबे लंबे दांत जो कब्र की दीवारों को चीरते हुए आएंगे। और मेरी कहां मजाल होगी जो मैं उनसे कह सकूंगा कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं गुनाहों से तौबा तो कर लूंगा। मेरी क्या मजाल होगी कि मैं ये कह सकूंगा। आपने फरमाया, बेटा, ये नहीं कर सकते तो जब फरिश्ते मुनकर नकीर जब कब्र में आए और सवालात करें तो उनसे कह देना कि थोड़ी देर के लिए मुझे, दुनिया में मैंने देखा है कि जब स्कूलों कॉलेजों और मदरसों के जब पेपर आते थे उससे पहले असातिज़ा तैयारी के लिए कहते थे, हम तैयारियां कर लेते थे, मुझे भी मोहलत की जरूरत है कब्र के इम्तिहान के लिए। तो फिर नौजवान फिर बिलक उठा के हुजूर, ये भी कैसी नसीहत है, मेरी कहां मजाल होगी जो इतने खतरनाक सूरतों में आकर के मेरा इम्तिहान लेंगे। मेरी कहां मजाल होगी कि मैं उन डरावनी सूरतों के अंदर आने वाले उन फरिश्तों से कह सकूंगा कि मुझे इम्तिहान की तैयारी करने दीजिए। लेकिन हुजूर, मुझे ऐसी नसीहत फरमाएं ताकि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं। आपने फरमाया, बेटा, नसीहत करना बड़ा आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। तुम इतने ज्यादा मजबूर हो, इतने मोहताज हो कि राज़िक की दी हुई रोजी को भी नहीं छोड़ सकते। और जब मलिकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आए तो उनसे मोहलत तलब भी नहीं कर सकते। और जब मुनकिर नकीर कब्र में सवालात करने के लिए आए उस वक्त भी उनसे इम्तिहान की तैयारी की मोहलत नहीं मांग सकते। तो जब तुम इतने मोहताज और मजबूर हो तो ये बेटे गुनाह करना ही छोड़ दो ताकि तुम्हारा परवरदिगार जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, जब तू अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करके जब एक बार अपने रब को पुकारे, या अल्लाह मुझसे फलां फलां गुनाह हो गए, तो तेरे रब की रहमत तुझे 70 बार पुकार कर कहे, या अब्दी, ए मेरे बंदे, मांग क्या मांगता है, मैं तेरा रब तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। जब ये नसीहत उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस नौजवान को की, चीखें निकल गई, गुनाहों से तौबा करते हुए कदमों में गिर गया। और रिवायतों में आता है कि मरते दम तक
तौबा पर इस्तकामत पसीर रहा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये सिर्फ किस्से कहानियां सुनाने का मकसद नहीं है। आज हमारी मस्जिदें बड़ी बड़ी बन चुकी है, आलिशान बन चुकी है, लेकिन हमारे अंदर अमल की जरा सी तौफीक नहीं है। आज बाबाओं के चक्कर खूब निकालते हैं। अगर किसी के घर में तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, तो किसी ने भी कह दिया कि फला जगह एक बाबा बैठा है और वो पर्चे देता है, वो फूंक मारता है, पथरियां निकाल देता है, बीमारियां निकाल देता है। आज का मुसलमान बगैर सोचे समझे कि मैं जिसके पास जा रहा हूं, क्या उस बाबे का मेरे रब से भी कोई वास्ता है कि नहीं है, हमारे प्यारे आका से भी कोई वास्ता है कि नहीं है, ये तक नहीं देखते। जाकर के उस बाबे के चक्कर निकालना शुरू कर देते हैं। वो चाहे किसी तरह का हुक्म दे दे कि ये करना होगा, वो करना होगा, ये चढ़ावा, वो चढ़ावा, ये चक्कर, वो चक्कर, ये फेरी, वो फेरी, लेकिन एक मुसलमान अपने ईमान को बर्बाद करके आ जाता है। क्यों? बीमारी पीछा छूट जाए, कैंसर है, मौत आएगी। प्यारे, सांसों की गिनती अगर पूरी हो गई है ना, तो कोई दुनिया में कोई बाबा वाबा बचाने वाला नहीं है। हाँ, अल्लाह ने अपने वलियों की चौखटें हमें अता की है। अगर उनकी सिफारिश उनके दोस्त ने मान ली तो हमारा कोई चारा बन सकता है, और अगर उनकी सिफारिश ना चली तो कोई दुनियावी बाबा, डोंगी बाबा, कोई उसमें कमी पेशी नहीं करवा सकता। हजरात, अर्ज करने का मकसद है कि फजूल जाली बाबों के पास जाने से गुरेज करें, अपने ईमान को बर्बाद ना करें। तुम्हारे मौला का दर तुम्हारे सामने मौजूद है। जब भी कोई तकलीफ परेशानी आए, नमाज पंजाना की पाबंदी कर लें और गिड़गिड़ा करके रो रो करके उस रब की बारगाह में दुआ करें जिन डॉक्टरों और तबीबों के इलाज के लाजवाब हो जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उस वक्त तुम्हारे रब की कुदरत में वो ताकत होती है कि वो चाहे तो आपकी बीमारी सेकंडों में खत्म कर सकता है। लेकिन बशर्त यह कि एक मुसलमान के पास वो ईमान होना चाहिए, वो यकीन होना चाहिए कि मेरा रब ही इस मुसीबत को दूर कर सकता है। एक नौजवान की बीवी की ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, और उसको कहा कि 50,000 का इंतजाम कर लो, और वो गरीब आदमी है, वरना तुम्हारे बीवी के पेट में जो बच्चा है वो भी जाएगा और तुम्हारी बीवी भी खतरे में है। उसके पास कोई चारा न था। वो नौजवान एक मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रो करके दुआ कर रहा था कि मौला मेरी लाज रख ले, मेरी बीवी की जान बचा दे। मौला, मेरे पास एक रुपया नहीं है, डॉक्टरों ने 50,000 रुपए का डिमांड किया कि इतना खर्च आ जाएगा, लेकिन मेरे पास कुछ चारा नहीं है। ऐ मौला, तू ही बात बनाने वाला है। एक मालदार शख्स को सोए सोए रात को एक घबराहट महसूस हुई और वो अचानक से उठा के, ये क्या हो गया? उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई अटैक वगैरह तो नहीं हो रहा है। वो अचानक से खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी निकाली और इस हॉस्पिटल की तरफ रवाना होने लगा। देखा कि मस्जिद का दरवाजा खुला है, देखे क्या है। मस्जिद में देखता है तो दरवाजा खुला हुआ है, तो उसने सोचा कि चलो नींद से उठे तो मुंह हाथ धो लेते। मुंह धोने बैठा तो उसका दिल किया कि मैं वुजू करके 2 रकात पढ़ लूं, नमाज पढ़ लूं। उसके बाद अपने जैसे जैसे उसने वुजू किया तो उसको सुकून सा महसूस होने लगा। वो आगे बढ़ा कि चलो मैं नमाज ही अदा कर लूं। जब मस्जिद में अल्लाह ने बुला ही लिया तो नमाज के लिए आगे बढ़ा तो देखता है कि एक नौजवान कोने में बैठा रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहा है कि मौला मेरी बीवी की जान बचा ले, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। वो नौजवान सुनता रहा कि हो सकता है कि अल्लाह ने मुझे इसी के लिए बुलाया हो। उसने अपनी जेब से 50,000 की गड्डी निकाली और उसके हाथों में रख दी, और फिर अपना एक कार्ड निकाला और वो भी उसके हाथ में रख दिया कि और भी अगर जरूरत हो तो इस नंबर पे फोन कर लेना।
तो वो कहने लगा कि मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है। ईमान हो तो ऐसा। वो नौजवान कहता है मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे बस मैंने अपने रब से इतना ही पैसा मांगा था, उसने मुझे अता कर दिया। अब मुझे इससे आगे जरूरत पड़ेगी तो मेरे रब का दरबार ही मेरे लिए काफी है। बस ये कह करके वो नौजवान ने जैसे ही उसके हाथ में वो 50,000 की गड्डी रखी और ये कहने के बाद वो नमाज में मसरूफ हो गया। वो नौजवान उठ करके अपने हॉस्पिटल की तरफ चला गया। इस तरह से उसकी बात बन गई। तो हजरात, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर को तुमने जो गैर आबाद कर रखा है। 5 वक्ता अल्लाह ने नमाज फर्ज की है। बरोज़े महशर सबसे पहले सवाल नमाजों का होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने ख्वाजा अजमेरी के दरबार में कितनी हाजियां दी, जमालुल औलिया की बारगाह में कितनी हाजियां दी। वलियों के दरबार में जाना हम बाइसे फख्र समझते हैं कि हम गुनहगारों की दुआ कबूल हो ना हो, उनके सदके से हमारी दुआएं कबूल हो जाती। ये फैजान भी है, लेकिन हम मस्जिदों की हाजिरी को छोड़ करके, भुला करके ये सोचे कि खाली वलियों के दरबार में जाने से हमारा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो बुजुर्ग भी हमारे बरोज़े क़यामत, मुर्शिद भी मतलब शर्मिंदा होंगे कि हमारे जो मुरीदीन हैं, इनके अंदर ऐसे लोग हैं कि जो नमाजों के करीब नहीं जाते। अरे बुजुर्गों को जो विलायत मिली है नमाजों के सदके से मिली है। कोई वली नहीं हो सकता जब तक नमाज़े पंजगाना का पाबंद ना हो, शरीयत का पाबंद ना हो, हराम से बचने वाला ना हो, वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। कोई करामत दिखाना, कोई अजीब चीज दिखाना, यही करामत नहीं है, बल्कि शरीयत पर जिस भी बिरादरी के आदमी ने, किसी भी बिरादरी, छोटी से छोटी बिरादरी के आदमी ने ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी के साथ शरीयत पर अमल कर लिया, वो अल्लाह का वली है। हराम से बच करके, खौफे खुदा से, गुनाहों से बच करके जिसने शरीयत की पाबंदी कर ली, वो अल्लाह का वली है। इसमें कोई शक नहीं है। उसमें करामत जाहिर हो न हो, उससे कोई ये जो करिश्मे हैं, ये तो जादूगर भी दिखा देते हैं। ये वलियों की शान नहीं है कि करिश्मे दिखाएं तो विलायत साबित होती है। अल्लाह के दीन की शरीयत पर जिसने अमल कर लिया, वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है। अल्लाह ताला मरहूम मगफूर की बेहिसाब मगफिरत फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक बरहमत फरमाए।